आदि मानव में से मानव बने, उनकी सफर हम यहाँ तय करेंगे। जैसे सेंटर में से पास होंगे तो हमारी परछाई जो है वो आदि मानव के रूप में देखने को આપણો વરસાયો આદિ માનવ જેવો દેખાય ભાઈ જો यहाँ पृथ्वी की लेयर्स दिखाई है, पृथ्वी की स्तर, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल कोर और क्रस्ट। जो है वो जुरासिक समय के है, जैसे कि पहले लिखा हुआ है, हाँ टाइम पीरियड लिखा हुआ है। हाँ लिखा हुआ है। जो फर्स्ट है ना वो 15 से 20 करोड़ साल पुराना है, मतलब जुरासिक समय। तो ये देखते हुए आगे जाना है वीडियो में। पीरियड कैसे डिसाइड हुआ हमें? कि ऐसा होती थी और भविष्य में भी होगी, जिससे भूकंप आएंगे, कंपन होगा और नए बदलाव आते रहेंगे। यहाँ पृथ्वी की सबसे ऊंची और सबसे गहरी जगह दर्शाई है। सबसे ऊंची जगह है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,849 मीटर। सबसे गहरी जगह है मारियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई है 11। તો જય દ્વારકાધીશ ભાઈ, જય મા મોગલ, સ્વાગત છે તમારું આપણા એક નવા વિડીયોમાં। તો પહેલાં તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય એ બધા ભાઈઓ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। અને આપણે આવી ગયા છે સ્મૃતિવન ભુજમાં। સ્મૃતિવન ભુજમાં જ્યાં જોવાલાયક ઘણું બધું છે અને હમણાં જ મોદી સાહેબ નવું નવું ઉદ્ઘાટન કરીને ગયા છે। તો મેં કીધું હાલો તમને જરાક બતાવી દઉં અંદર શું છે, ભૂકંપ આવે તો કઈ રીતના થાય શું થાય। તો વાગ્યા છે પૂણા 12 જેવું થવા આવ્યું છે। તો પહેલાં આપણે કાંઈ ખારો નાસ્તો કે જમવાનું જે કાંઈ મળે એ સારું પહેલાં કરી લઈએ, પછી જાય સ્મૃતિવનમાં। સામે જ છે, પાછળની સાઈડ મંદિર છે અહીંયા મસ્તરામ બાપુનું। બતાવું તમને આ બાજુથી એક ઝલક। હા ભાઈ સામે દેખાય છે, આજ આખે આખું છે સ્મૃતિવન। હમણાં આપણે એનો એક ગેટ ઓલી બાજુ છે, એક ગેટ અહીંયા છે। આપણે જાઉં એમાંથી અંદર ને શું છે એમાં જોવાલાયક તમને આખે આખું દેખાડું। તો આ છે ભાઈ ભુજનું સ્મૃતિવન। જોઈ શકો છો ભાઈ, અહીંયાથી આ રીતના દેખાય છે, ભુજિયા ડુંગરની માથે બનાવ્યું છે આખે આખું સ્મૃતિવન। આમ ઘણું બધું છે ભાઈ। હવે અંદર જે જોવાલાયક વસ્તુ છે હમણાં હું તમને આપણે જાય અંદર પછી તમને બતાવું। તમે મારી સામે જોઈ શકો છો સ્મૃતિવનનો ગેટ છે। આપણે જાય સીધે સીધા એમાં અંદર, જો અહીંયા લખેલું છે સ્મૃતિવન, અહીંયા ગેટ છે ભુજિયા ડુંગરની માથે। હવે આપણે જઈએ અંદર। ભાઈ એક ગેટમાંથી નીકળી ગયા છીએ। હવે અહીંયાથી અંદરની આપણે મ્યુઝિયમની અહીંયાથી ટિકિટ 20 રૂપિયા છે અંદર એન્ટ્રી કરવાની, એટલે પહેલાં એ લઈ લઈએ આપણે। ત્યાંથી ભાઈ આપણે આ ટિકિટ લઈ લીધી છે, 20 રૂપિયાની ટિકિટ છે અંદર આ બાજુ જવા માટે। હવે આપણે જઈએ મ્યુઝિયમમાં, ત્યાંની કંઈક 300 રૂપિયા ટિકિટ કહે છે। હવે જોઈએ અંદર। આપણે આવી ગયા છીએ ભાઈ તમને દેખાડવા સ્મૃતિવનમાં। અહીંની 20 રૂપિયાની ટિકિટ લઈ લીધી છે, તમે જોઈ શકો। અને હવે આપણે અંદર જઈએ। અંદર ટૂંકમાં મોટો કેમેરો એલાઉડ નથી, એટલે હવે આપણે જોઈએ પહેલાં અહીંયા જઈને ચર્ચા કરશું। અને પાછળ આખું તમે જોઈ ભુજ સિટી દેખાય છે। જાય અંદર પહેલાં તો મ્યુઝિયમમાં। આ રીતના ભાઈ આખું અંદર ગાર્ડન ને બિલ્ડિંગ છે। પહેલાં તો આપણે જોઈએ મ્યુઝિયમની ટિકિટ લેતા આવીએ ક્યાંથી મળે છે। ભાઈ આખું ભુજ સિટી છે, જોઈ શકો છો। અને આ એન્ટ્રી આ બાજુથી ટિકિટ નથી મ્યુઝિયમની, એ આમ સીધી આગળથી છે, હમણાં બતાવું તમને હું। અહીંયાથી છે ને ટિકિટ લેવાની, અહીંયાથી ભાઈ અંદરથી ટિકિટ લેવાની છે। જાય અંદર પહેલાં ઉપરથી ભાઈ આ રીતના કંઈક ભૂત દેખાય। આપણે લિફ્ટમાં પહેલાં માળે આવ્યા હોય અને લિફ્ટમાં અહીંયાથી પહેલાં માળે એમને લિફ્ટમાં આવી શકો, નોમે આવી શકો। હવે અહીંયાથી આપણે ટિકિટ લેવાની થશે, પછી આપણે જઈએ અંદર એન્ટ્રી થાય। આજે ભાઈ સ્મૃતિવન ચેકિંગની પ્રક્રિયા પૂરી કરી અને આપણે જાય છે ટિકિટ બારીએ। ટિકિટ બારી છે અહીંયા આ બાજુ, ત્યાંથી આપણે ટિકિટ લઈ લેશું। અહીંયા છે ભાઈ ટિકિટ કાઉન્ટર। તો ભાઈ કાઉન્ટરથી આપણે 300 રૂપિયાની ટિકિટ લઈ લીધી છે। હવે જાય આગળ। ઓટોમેટિક દરવાજા સિસ્ટમ છે ભાઈ, ઓટોમેટિક ખુલી જાય। 100 રૂપિયા ટિકિટ છે ભાઈ। અને નજારો તમે આખે આખો જોઈ શકો છો, પાછળથી ને અંદરથી ને બધું ઓટોમેટિક। હવે જોઈએ જે મેઇન વસ્તુ છે એ અંદર તમને બતાવું। અહીંયા એન્ટ્રી ગેટ, અહીંયાથી એન્ટ્રી થાય એ પાછા ઓલી બાજુથી નીકળી જશું। સુંદર જગ્યા છે ભાઈ। અને આપણે હજી એન્ટ્રી થવાની વાર છે, એક ગ્રુપ આપણી પહેલાં ગયું છે, તો એ ગ્રુપ નીકળી જાય પછી મને લેશે, હું કીધું છે તો 10 મિનિટ બેઠો છું। અહીંયા ખાસ તમને જ દેખાડવા માટે આવ્યો છું, એટલે હવે તો
સપોર્ટ કરી દેજો ભાઈને. ઓકે, અંદર આવી ગયા ભાઈ. આપણે આ પહેલા નંબરનો છે રાઉન્ડ. नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान जो आज आप देखते हैं वो कल नहीं था और शायद कल नहीं होगा. નીચે એવું લાગે ભાઈ કે પગમાં પાણી આવે. प्राकृतिक संसार में जो भी आप देखते हैं वो एक लगातार बदलाव के कारण है. हवाएं, बारिश, सूखा, भूकंप, सुनामी या ज्वालामुखी, ये सब इस दुनिया को इसका नया रूप देते हैं. कभी जमीन उभर आती है तो कहीं नदियां बहने लगती हैं. हवा की कौन और क्या अस्तित्व में आएगा और उसका रूप क्या होगा. मानव इस लगातार परिवर्तन को स्वीकार करता है और इससे बदलाव अपनाने की उसकी क्षमता बढ़ती है. तभी ऊंट तैरना सीख जाते हैं, चिंकारा 2 बूंद ओस पर जिंदा रहता है और पौधे खारे पानी में पनपने लगते हैं. बदलाव के साथ सीखने, समझने और नया रूप लेने की ये कहानी यूं चलती रहती है. परिवर्तन के संसार अपनाता है कि वो नित्य नया रूप ले सके. पर्वत उभर आते हैं जहाँ कल सागर फैला था. लहरें कल वहाँ झूमेंगी जहाँ आज भूमि की बाहें रहती हैं. कल कुछ पशु पक्षी लुप्त हो जाएंगे या नया रूप ले लेंगे. परिवर्तन शाश्वत है. इस संग्रहालय में आप लगातार परिवर्तन और उसे अपनाने की मानवीय क्षमता को नजदीक से जानेंगे. यह यात्रा धरती के जन्म लेने से शुरू होगी और उस कल तक जाएगी जिसका निर्माण हम सब मिलकर कर रहे हैं. स्मृतिवन अर्थक्वेक म्यूजियम में आपका स्वागत करते हैं. તો આ પહેલો પાર્ટ હતો ભાઈ, એમાંથી આપણે નીકળી ગયા. હવે જઈએ આગળ. वर्तमान समय की हवा, तापमान और कंपन के बारे में जानेंगे. और जो आप सीधे देख रहे हैं हवा की गति दर्शाते हैं. हवा की शोर ज़्यादा रहती है
और नीचे रखे गए थर्मोमीटर के माध्यम से वर्तमान समय का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। हाँ, और आपकी राइट साइड पे यहाँ पे जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन के माध्यम से वर्तमान समय में अभी कहाँ कंपन हो रहा है, किस तरह से, उसके लाइव रीडिंग्स दिखाए थे। एक हिमालय है, दूसरा बच्चा। आगे इन बदलावों के आगे संसार इस सेक्शन में हम पृथ्वी की बनावट, घटक और परिवर्तन के बारे में जानेंगे। ये पृथ्वी का क्रोड है, यानी पृथ्वी का गर्भ है, जिसका तापमान 5430 डिग्री सेल्सियस है। इसका तापमान सूर्य की सतह के समान रहता है। आगे यहाँ पृथ्वी की सबसे ऊंची और सबसे गहरी जगह दर्शाई है। सबसे ऊंची जगह है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8849 मीटर। सबसे गहरी जगह है मारियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई है 11034 मीटर। ये पैसिफिक में है। यहाँ पृथ्वी का सबसे गहरा मानव निर्मित बोरहोल है, जिसकी गहराई 12.2 किलोमीटर है। और इससे आगे मशीनरी काम नहीं करती है, क्योंकि नीचे का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, तो मशीन डैमेज हो जाते हैं। इस बोरहोल का नाम कोला सुपरडीप है और ये रशिया में है। परिवर्तन शाश्वत है। यह पृथ्वी जो मनुष्य का लगातार यहाँ है फोसिल्स कैसे बनते हैं। तो कुदरती आपदाओं के दौरान मनुष्य, पशु पक्षी या वनस्पति तलछट के नीचे दब जाते हैं और बहुत सालों के बाद जब हम उन्हें बाहर निकालते हैं तो वे हमें फोसिल के रूप में मिलते हैं। आगे यहाँ पृथ्वी की लेयर्स दिखाई है। पृथ्वी की स्तर, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। खड़ो खड़ो इधर आओ इधर आओ। इसके ऊपर लिथोस्फीयर, जो एक भूखंड था, तैरता था, जिससे आगे चलकर महाद्वीप बने। यहाँ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की वर्तमान सीमाएं दर्शाई है, जो इस तरह से मूवमेंट करती है। कभी आपस में तो कभी नहीं है। आगे आगे खड़ो खड़ो यहाँ यहाँ आओ। और इसी के परिणाम स्वरूप पर्वतमालाएं गहरी घाटियां और नए महाद्वीप बने। ये टेक्टोनिक प्लेटें जब भी मूवमेंट करती है तो उसका नतीजा क्या होता है वो यहाँ पर देखेंगे। और जरा अंदर घुमाइएगा। ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो खाई बन जाती है। जब ये प्लेटें टकराती है तो पहाड़ का सर्जन होता है, जिससे हमारे हिमालय पर्वतमाला है। और जब ये समय के प्लेटें साथ परस्पर व्यवहार करती है एक जगह पर, तो भूकंप या ज्वालामुखी आने की संभावना है। और जलवायु अभी तक हमने जो भी देखा उसका फुल डिटेल वीडियो आगे देखना है। उससे पहले ये फोटोज देखना है। ये कच्छ में से मिले हुए ओरिजिनल सी फोटोज, कच्छ में से मिले हुए ओरिजिनल। हाँ, और इसमें से कुछ जो है वो जुरासिक समय के हैं, जैसे कि पहले कालखंड लिखा हुआ है, हाँ टाइम पीरियड लिखा हुआ हाँ लिखा हुआ है। जो कॉस्ट है ना वो 15 से 20 करोड़ साल पुराना है, मतलब जुरासिक समय। तो ये देखते हुए आगे जाना है वीडियो में। वैज्ञानिक पीरियड कैसे डिसाइड हुआ है? कि ये तो 65 करोड़ साल पता नहीं सर, में सर्च किया प्राण वो जैविक शायद किसी ने। एक बड़ा इसमें लिखा ही होगा ना महाद्वीप बना, जिससे गोंडवाना, लॉरेंशिया, पोर्टेरा और साइबेरिया बने। कहा जाता है कि ભુજમાંથી મળેલા અવશેષો બધા એવા पहले काबली फेरस બહુ જૂના જમાનાના। गोंडवाना और लॉरेंशिया की प्लेटें आपस में टकराई, जिससे पेंजिया महाद्वीप बना। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ ભુજમાંથી કંઈક ઓલા पेंजिया के और પુરાના અવશેષો મળી ગયેલા। जिससे आज के महाद्वीप बने। આ બધી વસ્તુનો અહીંયા ફૂલ વિડીયો ચાલુ છે, હમણાં આપણે અહીંયા વિડીયો જોઈએ। यहाँ आए बदलावों और उनकी चुनौतियों को स्वीकार कर उनके अनुरूप ढलती रही।
कुछ प्रजातियों ने खुद को इसके अनुकूल बनाया। આપણે ભાઈ આ બધી વસ્તુનો ફૂલ વિડીયો છે, જોઈ લઈએ અહીંયા. આ ઢીંગલી આપણે મોટા આગળ જ વહી જાય છે સીધી. બધી પૌરાણિક વસ્તુ છે ને ભાઈ, પથ્થર ને એમાં મેં તમને દેખી આખી પ્લેટો ને બધું દેખાડ્યું. એ બધી વસ્તુ ક્યાંથી મળી હતી, કઈ રીતે છે, લગભગ એનો વિડીયો છે ભાઈ. જોઈએ આપણે આખો વિડીયો. वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग इसी समय भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना से टूटकर उत्तर दिशा में एशिया के मुख्य भूभाग की तरफ बढ़ने लगा। इनके टकराने से हिमालय का जन्म हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी इलाके की टेक्टोनिक प्लेटें निरंतर सक्रिय हैं। लिथोस्फीयर की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार हिलती हैं। उनमें पहले भी हलचल होती थी और भविष्य में भी होगी, जिससे भूकंप आएंगे, कंपन होगा और नए बदलाव आते रहेंगे। आने वाले कुछ दशकों या शताब्दियों में महाद्वीपों की स्थिति और रूप में परिवर्तन होते रहेंगे, पर इन बदलावों के आगे संसार और मानव ने कभी हार नहीं मानी, बल्कि स्वयं को नई परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया। लगातार होने वाले परिवर्तन और उसे अपनाने की मानवीय क्षमता की ये कहानी यूं ही चलती रहती है। આપણે ભાઈ પાછો પહેલેથી આખો વિડીયો ચાલુ કરીએ છીએ, કેવી રીતે પૃથ્વી ઉપર જીવન ચાલુ થયું. તો જો તમે આખો આ વિડીયો. यह पृथ्वी जो मनुष्य का एकमात्र निवास स्थान है, निरंतर परिवर्तन से गुजरती रही है। यह हरी भरी धरती लगातार हुए बदलावों का ही नतीजा है। साढ़े 4 अरब साल पहले ये धरती पिघली चट्टानों और सल्फर के उबलते समुद्र की तरह थी, जहां जीवन की कल्पना करना भी असंभव था। समय के साथ यहां का तापमान गिरता गया, जिससे पृथ्वी की कई संकेंद्रित परतें क्रस्ट, मैंटल और कोर बनने लगी। मैंटल की ऊपरी सतह एस्थेनोस्फीयर मोटी और चिपचिपी थी। इसके ऊपर लिथोस्फीयर जो एक भूखंड था तैरता था, जिससे आगे चलकर महाद्वीप बने। लिथोस्फीयर की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार हिलती डुलती रहती हैं, कभी आपस में टकराती हैं तो कभी दूर हो जाती हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप पर्वतमालाएं, गहरी घाटियां और नए महाद्वीप बने। समय के साथ ग्लेशियरों के बीच होने वाली गतिविधियों से पृथ्वी का तापमान और जलवायु जीने लायक बन गए, जिससे यहां जीवन की शुरुआती परिस्थितियां बनने लगी। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि 65 करोड़ साल पहले क्रायोजेनियन युग में एक बड़ा महाद्वीप टूटा, जिससे गोंडवाना, लॉरेंशिया, बाल्टिका और साइबेरिया बने।
कहा जाता है कि 35.5 करोड़ साल पहले कार्बोनिफेरस युग में गोंडवाना और लॉरेंशिया की प्लेटें आपस में टकराईं, जिससे पेंजिया महाद्वीप बना। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ पेंजिया के और टुकड़े होते गए, जिससे आज के महाद्वीप बने। जिंदगी भी यहां आए बदलावों और उनकी चुनौतियों को स्वीकार कर उनके अनुरूप ढलती रही। कुछ प्रजातियों ने खुद को इसके अनुकूल बनाया, कुछ विकसित हुई और कुछ नष्ट हो गईं। बदलावों का यह सिलसिला आज तक जारी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग इसी समय भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना से टूटकर उत्तर दिशा में एशिया के मुख्य भूभाग की तरफ बढ़ने लगा। इनके टकराने से हिमालय का जन्म हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी इलाके की टेक्टोनिक प्लेटें निरंतर सक्रिय हैं। लिथोस्फीयर की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार हिलती हैं। उनमें पहले भी हलचल होती थी और भविष्य में भी होगी, जिससे भूकंप आएंगे, कंपन होगा और नए बदलाव आते रहेंगे। आने वाले कुछ दशकों या शताब्दियों में महाद्वीपों की स्थिति और रूप में परिवर्तन होते रहेंगे, पर इन बदलावों के आगे संसार और मानव ने कभी हार नहीं मानी, बल्कि स्वयं को नई परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया। लगातार होने वाले परिवर्तन और उसे अपनाने की मानवीय क्षमता की ये कहानी यूं ही चलती रहती है। भाई राउंड 3 में यहाँ पे गुजरात का मैप बताया गया है। गुजरात की 11 फोर्ट लाइन बताई गई है। कच्छ में 2001 में जो भूकंप आया था वो कच्छ की मेन लाइन और साउथ वागल फोर्ट लाइन की वजह से आया था। जैसे 1 नंबर और 9 नंबर की वजह से कच्छ में भूकंप आया था, ये बताया गया है। आदि मानव में से मानव बने, उनकी सफर हम यहाँ तय करेंगे। जैसे सेंटर से पास होंगे तो हमारी परछाई जो है वो आदि मानव के रूप में देखने આપણો વરસાદ આદિ માનવ જેવો દેખાય ભાઈ જો यहाँ पर 5000 साल पुराना एक ट्रेड मैप बताया गया है। किस तरह से देश और विदेश से आयात और निर्यात जल और जमीन मार्ग से होती है। इनमें से आपको जो ये व्हाइट कलर की लाइन दिखाई दे रही है, ये सभी मार्ग बताए गए हैं। कौन से देशों के साथ प्राचीन समय से गुजरात का राज्य है वो जुड़ा हुआ था।
देख लीजिए ना, इस तरफ आ जाइए। आदिमानव से मानव बनते गए तो उन सभी की ज़रूरतें बढ़ती गई। तो खुद के स्वरक्षण के लिए पत्थर में से हथियार बनाने लगे, खाना पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, कृषि एवं पशुपालन का व्यवसाय शुरू किया और मकान बनाने के लिए कुछ ईंटों की भी खोज की थी। तो वो सब कुछ यहाँ ऐसी 4 विंडो में बताया गया है। वो देखिए किस तरह का है। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि 65 करोड़ साल पहले क्रायोजेनिक युग में एक बड़ा आग हुआ, जिसे और सर्दी मिला। और यहाँ पर प्राचीन समय में जब पैसे नहीं थे तो ऐसी जो ज्वेलरी थी उसका प्रयोग चलन के तौर उपयोग करने लगे। और ये जो ज्वेलरी थी वो अर्धकीमती धातु कीमती पत्थर में से बना दी थी, तो इसका भी व्यापार करते थे। और उस टाइम, नापतोल के लिए कोई साधन नहीं थे, तो अलग-अलग पत्थर के इस तरह से ऐसे पत्थर का इस्तेमाल करते थे। और एक जगह से दूसरी जगह जब सामान भेजते थे तो ऊपर ऐसे इस तरह से टैग लगाए। और यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जुड़े हुए 4 को बताए गए। फर्स्ट जो मॉडल बताया गया है वो धोलावीरा नगर का बताया गया है। जो धोलावीरा नगर है वो अपनी जल संचय प्रणाली, नगर रचना और घटक व्यवस्था के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाता है। और दूसरा बताया गया है लोखंड नगर। दूसरा कौन सा है? हाँ, दूसरा कौन सा होता है? लुथर नगर है वो अपनी लुथर। अर्थव्यवस्था और समुद्री व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। और तीसरा है बगसरा, वहाँ की ज्वेलरी सबसे ज़्यादा फेमस है। बगसरा। और फोर्थ में बताया गया है सुरकुंडा। सुरकुंडा के यहाँ हस्तकला के कारखाने थे, वहाँ पर जो चूड़ियाँ बनती थी वो सबसे ज़्यादा फेमस थी। यहाँ आपकी फर्स्ट गैलरी कंप्लीट होगी, सामने सेकंड गैलरी में आना है उसका। ओके। आ जाओ बेटा। वहाँ सामने जाना है उसका। હા ભાઈ, પહેલી ગેલેરી ઓકે થઈ ગઈ છે, હવે આપણે બીજી ગેલેરીમાં અંદર જાય છે.